ہاں جی کی ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، میں اصل میں ہیڈ کوارٹر سے نکلا تھا، چھوٹا میٹر اسمال میٹر ایشو جو ہے سالو کر کے، تو ابھی آم توڑ رہا تھا۔ اچھا، اب آپ سے کہیں گے کہ آم توڑنا کیا ہوتا ہے، کہ وہ درخت سے تو توڑ نہیں رہا تھا، ہتھوڑی سے توڑ رہا تھا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ جو جرمن آم ہوتا ہے، وہ سمجھیں گے ہاں وی آر جسٹ کڈنگ، بٹ دس وی آر ناٹ کڈنگ، اٹس اے ٹرو۔ جو جرمن آم ہوتا ہے، شاید فرانس میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس کو ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہمارے ہے۔ ملک میں جو آم ہے نا، جو یلو آم، چونسا آم، تو لنگڑا آم، اور یہ جو ہے نا گودے والے آم، چوسنے والے آم، وہ ان کا ایک رواج ہے۔ جو جرمنی میں آم ملتا ہے اس کو ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ وہ اتنا سخت ہوتا ہے، یہ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ یہاں یلو آم کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جرمنی میں۔ میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، فرانس کی بات تو آپ بھی کریں گے۔ جرمنی میں یلو آم جو ہے وہ کہیں نہیں ملتا، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جرمنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یلو آم ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو آم ہوتا ہے وہ گرین اور ہلکا ہلکا ریڈ ہوتا ہے، اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے جیسے کہ سیب ہوتا ہے سخت، فار ایگزامپل۔ تو جب آپ اس کو کاٹتے ہیں سیب کو، تو اس کا جو گودا ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ بالکل ایسے ہوتی ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی۔ یہاں کا جو آم ہے وہ ایسے ہی ہے۔ بات بھی میں کرنے کا مقصد یہ ہے، اس سے مجھے دو چیزیں یاد آ رہی تھی۔ ایک تو مجھے بچی یاد آ رہی تھی، وہ جو زینب بچی ہے جو مرڈر ہوئی بیچاری، اس کی جو میں نے کبھی میں ویڈیو دیکھا کرتا تھا، تو اس بچی کو آم بڑے پسند تھے۔ تو وہ نا ایک جگہ کے اوپر وہ ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ جی اس کی کاپی دکھا رہے تھے، اس میں لکھا میرا نام زینب ہے، میرے باپ کا نام امین ہے، مجھے آم بہت پسند ہے۔ تو مجھے اتنا خیال آیا، اتنا ترس آیا، میں نے کہا دیکھو وہ بچی چھوٹی سی مر گئی بیچاری، اب ابھی تک اس کے قاتل جو ہے اس کو نہ سر عام پھانسی دی، نہ اس کو سزا دی، ہش ہش کر گئے، پتہ نہیں کیا میٹر ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کی جوڈیشری، دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے جب انسان بات شروع کرتا ہے، تو جوڈیشری کی باتیں کرتے ہیں، ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر انصاف نہ ہونے کے برابر کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے اس کی بات یاد آ رہی تھی۔ دوسرے، پاکستان میں اس قدر عام اچھا بنتا ہے، مطلب ہے کہ اس کا جو کوالٹی زبردست ہوتی ہے، مگر وہاں ظلم کیا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑوں کو یہ جو تحفوں میں جاتے ہیں، کریٹوں کے کریٹ جاتے ہیں، جو فیبولس قسم کا جو میٹیریل ہوتا ہے آموں کا، کسی بھی بھال کرے کہ میں آم کا ذکر کر رہا ہوں، وہ جرنیلوں کو جاتے ہیں، وہ وڈیروں کو جاتے ہیں، وڈیرے بھیجتے ہیں، اپنے تعلقات بناتے ہیں، وزیروں کو جاتے ہیں، امیروں کو، پتہ کہاں کہاں جاتے ہیں، اور جو باقی بچتا ہے جو سب سٹینڈرڈ ہے آم، وہ پھر مارکیٹ میں عام آدمی کی جاتا ہے، وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کوالٹی کیا ہوگی۔ تو میں سوچ رہا تھا، آپ کو بھی، ہمیں بھی 18 سال ہو گئے یہاں پہ، ہم نے وہ بھی یلو آم دیکھے نہیں آج تک یہاں پہ، 18 سال سے سوچتے ہیں کہ وہ کبھی آم ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں۔ تو میں اس کی بات کر رہا تھا، تو آپ نے کہا نا کیا کر رہے، تو میں وہ آم، جرمن آم کو ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے، اٹس ایگزامپل رپورٹ ہوگا، تو چھری سے کٹ جاتا ہے لیکن بہت سخت ہوتا ہے۔ بہرحال آپ سنیں کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی بیٹھا ہوں باہر، دھوپ نکلی ہے، 6 مہینے کے بعد دھوپ کی شکل نظر آتی ہے، تو وہ بیٹھا ہوں، کیا نام ہے، دھوپ سیک رہا ہوں۔ اور ساتھ میں جو آم کی بات آپ نے کی ہے، وہ آم کا چکر یہ ہے کہ وہ افریقہ سے آتا ہے، اور اس آم کو پکایا جاتا ہے، سمجھائی تھا نا، اس کو ایسے نہیں کھایا جاتا، اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، تو بہرحال میں تو اس طرف آنا چاہ رہا تھا۔ دو طرح کے آم ہوتے ہیں، ایک پکانے والا ہوتا ہے اور ایک کھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ پکانے والا بھی ہے، مگر کھانے والا بھی پتھر کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی آپ چھری سے کاٹتے ہیں، پھر اس کے اندر سے گودا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب دو طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کھانے والا آم بھی سخت ہوتا ہے۔ بہرحال جس سے میری بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اگر ہمارے ملک کی برآمدات یا ہمارے ملک کی تجارت یا ہمارے ملک میں لوگوں نے یہ فراڈ نہ کیے ہوئے ہوتے باہر کے ملکوں کے ساتھ بزنس میں، آج پاکستان جو ہے وہ آم جو ہے وہ ہی، یا اپنا فروٹ جو ہے، یا اپنی جو مصنوعات ہیں، یا اپنے پھل فروٹ ہیں، وہ پوری دنیا میں برآمد کر رہا ہوتا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، ایون چاول، ایون اور چیزیں، یہ یہاں پر پہلے بہت زیادہ ان کی پاپولر ہوئی تھی، لیکن ان کی بعد میں مال میں خرابی کی وجہ سے پوری کنسائنمنٹس جو ہیں ان ملکوں نے کینسل کی، پورٹ سے واپس ڈیپورٹ کی،
और जिसकी वजह से जो वो दिखाते कुछ थे पाकिस्तानी और भेजते कुछ थे, जबकि इंडियंस जो है वो जो माल दिखाते थे वही माल भिजवाते थे, जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पे मार्केट कैप्चर की। मैं जो मिसाल देना चाहता हूँ ये जो है, जिसकी वजह से हमारी बरामदात का बेड़ा गर्क हुआ। अदरवाइज आज जितनी अच्छी वहाँ पे ज़राअत से चीजें बनती हैं, अगर वो लोग होते, मैंने खुद देखा यहाँ पे लोगों को, ये ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को जानता हूँ। फिर क्या हुआ कि जिस फॉर एग्जाम्पल अभी चावल है, पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, चावल पाकिस्तान का है जाता इंडिया है, और इंडिया की मोहर लग के, मेड इन इंडिया का ठप्पा लग के वो बाहर के मुल्कों में आता है, क्योंकि यहाँ इंडिया का माल जो है ये गोरे ले लेते हैं, पाकिस्तान का माल नहीं लेते। इतना बड़ा जुल्म है ये। मैं जो बात हमारी चली है ना, इससे देखिए बात से बात निकलती है, जो खराबियां होती हैं उनकी निशान नहीं की जाती है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप बात कीजिएगा, आज हम बात करेंगे इसने खाकान अब्बासी की दो बातों के ऊपर, बहुत जरूरी है आज की हमारी जो दोनों की गुफ्तगू होगी। एक तो इसने टैक्स रिफॉर्म्स दी हैं, उसके ऊपर एमनेस्टी जो उसने टैक्स रिफॉर्म दी है वो, और दूसरा जो खाकान अब्बासी का नंगा करके उसको उन्होंने उसका किया था वो, उसके बारे में। उसके बाद हाँ, चीन के बारे में जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि चीन के बारे में अब वो लोग वही बातें कर रहे हैं जो हम पहले कह चुके हैं। उसके बाद ये सलमान खान के ऊपर उसने दिया है वो जो हमारे वज़ीर दफ़ा ने, वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है, और जो हमारे लोग जो हैं उछल रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद हाँ, जो पानी और ये जो दूसरी, अच्छा बोलो, सही है, बोलो क्या कह रहे थे? हम इन चीजों के ऊपर जो है वो जो है, अच्छा बिलावल इसके ऊपर बात होगी। एंड हाँ, पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है, जो नया एयरपोर्ट बना, उससे फर्स्ट फ्लाइट जो है वो भी आज या कल वहां से फ्लाई करनी है, टेक ऑफ करेगी, वो उस एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे, और दूसरी बात ये हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम इन लोगों को क्लियर करेंगे कि अगर वो हमारी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। उसके अलावा बाकी हाँ, ऐसा चीजें और हैं, ठीक है जी। और एंड में हम बलोचिस्तान का वो रुख की बात करेंगे। एक रुख तो है जो सब देखते हैं कि वहां पर बलोची जो है पंजाबियों को मार रहा है, पर ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन पर जो बलोचियों का मौकफ है उसको भी हमें जरूर देखना चाहिए। अगर हमें जिंदगी में मौका मिलता है, अगर हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हमें बलोचियों का मौकफ भी सुनना होगा। तो आपके साथ जिस की बात हुई थी उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक होगा भाई जी? बिल्कुल ठीक है, सही है, 100% करेक्ट। अब मैं अगर आपने बलोचियों के बारे में पहले बात करनी है तो फिर मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे जो है वो नहीं, आप करो, फिर मैं बलोचिस्तान के बारे में बात करूँगा। कर ले, फिर आप करें, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा, ऐसे था कि आज सुबह बलोचिस्तान से एक लड़के का फ़ोन आया। जब उसका फ़ोन आया तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इतना नाम लूँगा कि उसका नाम, पूरा नाम नहीं लूँगा, उसका नाम सुहेल है, ठीक है। उससे मुझे कहा कि आप जो है बलूचिस्तान के बारे में बात करें, आप लोगों की पार्टी है तो आप जो है क्या नाम है इनकलाब की बात करते हैं, तो हमारे साथ जो यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके बारे में बात करें। तो मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी सी बात बताओ बलूचिस्तान के बारे में। तो मैं उसमें सरसरी बात बताऊंगा, सारी बात नहीं, काफ़ी लंबी बात हुई थी, तकरीबन आधे घंटे की। तो उसने कहा कि बात यह है कि जितने भी जो आपका जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो सर की साइड है, वो सारे जो हैं ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं टेररिस्ट हैं, हम लोग जो हैं क्या कहते हैं वो गलत हैं, हम लोग जो हैं वो मार कुटाई कर रहे हैं, कत्ल व गैरत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मीडिया पे जो है उसकी जो है ना वो बहुत शोर मचा रहे हैं। उसने कहा ये बात यह है कि हम लोग जो हैं कि जब हम यहाँ पे बलोची हैं तो बलोची लोग, हम लोग सारे अमीर नहीं हैं, गरीब लोग हैं। गरीब लोग अपने जो है काम, मतलब है कि अपना काम वगैरह करते हैं, लेकिन ये हमको बोलते हैं कि तुम लोग जो है कि पहले मतलब है दूसरे मुल्क से मिले हुए हो, यहाँ पे गद्दारी होती है, और जो है ना उसके पे ये फिर आके मोर्चे बनाते हैं, फिर हमारे गरीब लोगों को मारते हैं और फिर हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह।
تو اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہماری جو ہے کیا نام ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کیوں چاہیں گے، اس نے کہا باقاعدہ کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم جو ہے کیا نام ہے پاکستان سے علیحدہ ہوں، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں، ہم کیوں چاہیں گے کہ بھئی ہم جو ہے کیا نام ہے تکلیف دیں پاکستانیوں کو اور یہ ایسی کوئی بات ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پنجابی لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یا تو ہم نے کسی کو زیادتی کی ہو، انہوں نے یہ زیادتی شروع کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہم لوگ بلوچی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا باپ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، ہم اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھئی زیادتی مت کرو، حق کی بات کرو، ٹھیک ہے، اگر زیادتی کی بات کرو گے تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، سمجھائی نا۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں کہا کہ ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی ویڈیوز سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اور میرے بہت سارے لوگ جو ہیں میں جاننے والے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ میرے بلوچی دوست آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا نام ہے انقلاب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہم جو ہے ایسے ہی انقلاب کی چاہتے ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں جو کہ جو پاکستان کو جو ہے سٹینڈ دیں، پاکستان کے چاروں صوبوں کو کے ساتھ صحیح چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، بالکل درست چلیں گے، بالکل ایگزیکٹ وہی چلیں گے جیسے آپ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی مت کرو۔ مطلب ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ہم سے بھی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جب زیادتی کرتے ہوگے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، اگر ہمارے ساتھ صحیح ہماری جو ہماری ڈیمانڈز ہیں بلوچستان کی اگر وہ آپ پوری کرتے ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ پھٹا کرنے کی۔ تو اس نے کہا چاہے پختونستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے کوئی ہو، جو چیز ہوتی ہے وہ وہاں پہ بنتی ہے، وہ ہمارا بھی حق ہے کہ وہ ہمارے پاس بنائی جائے۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ کیا ہے، کیا انہوں نے کہا فیکٹریز لگائیں یہاں پہ مطلب کاروبار کریں، یہاں پہ لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ بھئی ہم لوگ جو علیحدہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو آفیشیل جو آپ لوگوں کے پروگرامز ہیں، جو آپ لوگوں کے جو گورنمنٹ بناتی ہے، اس میں ہمارے ساتھ دیں، تو ہم لوگ جو ہے 100% جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو زیادتی کریں گے تو پھر ہم بھی زیادتی کریں گے، اگر ہمارے ساتھ صحیح رہیں گے تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ تو میں نے سے کہا ٹھیک ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، ابھی وہ لائن پہ نہیں تھا تو میں اس کو لائن پہ لیتا تو وہ آپ اگلی بار میں لائن پہ لوں گا تو وہ ساری پرابلمز جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی ہمیں بتائے گا کہ بھئی وہاں پہ جو ہے اصل کہانی کیا چل رہی ہے، سمجھے نا۔ اتنی میری بات ہوئی تھی اور کافی لمبی بات ہوئی تھی، مقصد یہ ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا تو ظاہری بات ہے پھر ہم بھی دشمنی کریں گے، یہ بات تھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس کو ہم لیں گے کسی وقت لائن پہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے، ہم بات کریں گے، اور جو افغانیز ہیں ان کا بلوچیوں کا بھی ہم لوگ جو ہے وہ موقف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ لوگوں تک پہنچے۔ اور ہاں اس کے علاوہ سندھ کے کچھ لوگوں نے کیا کہ بھی آپ سندھیوں کے خلاف ہیں اور ہم جو ہے ہم بھی آپ لوگوں کے خلاف ہیں کیونکہ آپ لوگ سندھ کے خلاف ہیں، اور اسی طریقے سے پختونستان سے بھی کہ بھی آپ لوگ جو ہے پٹھان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پٹھان ہیں لیکن ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جب آپ تفرقہ ڈالیں گے، پنجابی تفرقہ ڈالیں گے تو ہم بھی ڈالیں گے، ہم بھی انسان ہیں، تو ہمارے ساتھ جب زیادتی کرو گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے۔ تو اسے کہا مل بیٹھ کے ساتھ جب 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ان کی پرابلم حل کرو گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ جب یہ تو مت شو کرو نا کہ ہم لوگ ٹیررسٹ ہیں، ہم لوگ جو ہے غلط ہیں، پنجابی پٹھان غلط ہے، سندھی غلط ہے، بلوچی غلط ہے، فلانا غلط ہے، سمجھے نا۔ تو وہ کہتا ہے جب بات کرنی ہے، تو جب کام کرنا ہے، جب ملک کو بنانا ہے تو پھر سب کو اکٹھا کر کے بناؤ، سب کے ساتھ چلو۔ ہاں ٹھیک ہے بات صحیح کہہ رہے، لیکن میٹر جو ہے اتنا وہ نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا سمپل نہیں ہے۔ جب تک ویسے ٹھیک ہے، وہ اس نے آپ سے بہت اچھی طرح بات کی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کریں اور وہ جو چیز ہے وہ ہم پھر لوگوں تک ڈائریکٹ پہنچے، ان کا موقف
اور ہم اگر وہ حق کے اوپر ہے تو قائم انقلاب جو ہے وہ ضرور بلوچیوں کا ساتھ دے گا. بلوچستان بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے, بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں, سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستان میں رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اور پائم اس کے لیے آواز اٹھائے گی, کیونکہ پائم جو ہے ایک متحد پاکستان کی بات کرتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھر ہم اینڈ میں بات کریں گے. میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, پھر ہم آئیں گے اینڈ میں ہم بلوچستان کے اوپر بات کریں گے, تاکہ میں تھوڑا سا ہم اس کے اوپر تھوڑا سوچ لیں اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ٹیکس ریفارمز دی ہے, جو بات ہم بات کرنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے دی ہے, مجھے اس سے قطع نظر, اس سے بالا نظر کس گورنمنٹ نے دی ہے کس نے نہیں دی ہے, لیکن اگر کوئی صحیح حکومت کے لیے یا ملک کے لیے اچھا کام کرے گا تو ہم اس کے لیے جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو ہم اس کی تعریف کریں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ, لیکن جس طرح کہ وہ روایتی طور پہ چاہے کوئی اچھا کام بھی کرے, کوئی حکومت کرے, تو دوسری پارٹیاں جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے اگینسٹ بولتی ہیں, جیسے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے رد کر دیا ہے اس کا یہ ٹیکس ایمنسٹی ٹیکس ریفارم جو ہے وہ رد کر دیا ہے. حالانکہ اس کے اندر بہت اچھی باتیں ہیں, مگر جنہوں نے رد کیا ہے وہ لوگ میں سمجھتا ہوں وڈیرے اور جو لٹیرے ہیں. پی ٹی آئی میں جتنے لٹیرے شامل ہیں, کالے پیسے والے شامل ہیں, اور جو دوسرے تیسرے ہیں جو پیپلز پارٹی کے وڈیرے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. ایک بس کالا پیسہ ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کیا, جنہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, وہ سب شامل ہے پی ٹی آئی میں, پیپلز پارٹی میں. تو نون لیگ میں ہے نا, ان کو تو ہمیں ابھی اس ذکر کے قابل بھی سمجھتے کہ ان کی چترول ہو رہی ہے. تو جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف اور جو ہے دودھ کا دھلا کہتے ہیں, وہ یہی دو پارٹیاں ہیں اس وقت, جو خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے جو جیم پیکڈ ہے دلوں سے, جیم پیکڈ ہے بدماشوں سے, جیم پیکڈ ہے جو حرامیان پاکستان سے, انگوں سے, بدماشوں سے, اور ان پڑھوں سے, جاہلوں سے, اور جو ہے یہ ریئلٹی ہے, اور جو ہے ویشیوں سے یہ پیکڈ ہے, جو معاشرے کو کچھ سمجھتے, جو قانون کو کچھ پی ٹی آئی اس میں جیم پیکڈ ہے. اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیم پیکڈ تو نون لیگ بھی ہے, جیم پیکڈ تو پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن وہ لوگ جو ہے اپنی. اچھا بات کرو, شروع ہو گیا. اس نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے حساب سے اس وقت پاکستان میں 7 لاکھ لوگ ٹیکس دے, جو ٹیکس جمع کرواتے ہیں. آپ کی بات صحیح نہیں آ رہی. ٹیکس کا جو ہم دے رہے ہیں, اگر یہ آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو, آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی, معلوم نہیں کیوں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, alright. بولو, ہیلو, بولو. ٹھیک ہے, صحیح اب آ رہی ہے, بولو. لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر یہ چیز امپلیمنٹ کرتی ہے تو 3.5 کروڑ
आदमी टैक्स के दायरे में आ जाएगा। आप खुद सोचें कि बहुत अच्छा सिस्टम है, 3.5 आदमी जो टैक्स के दायरे में आएगा तो उसमें से 2 करोड़ भी टैक्स देने के लायक होंगे तो कितना ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये उनको रेवेन्यू मिलेगा वो मुल्क की तरक्की में और मुल्क की उसमें काम आएगा। तो मकसद मेरा जो कहने का है, जो इन्होंने बाहर के लोगों के लिए भी मोदी है, वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं और आप जमाल साहब को आवाज एक मशवरा देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा है और इसके ऊपर गौर करे ये हुकूमत। ये हमारा था प्लान, लेकिन अगर ये लोगों टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है तो पहुंचे जो पाकिस्तान लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं, ये बाहर बहुत जरूरी करने की है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और ड्यूअल नेशनलिटी है जिनके पास, यानी कि बाहर का पासपोर्ट रखा हुआ है और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रखा हुआ है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ये पाकिस्तान जाकर तो शोधबाजियां करते हैं, शोधगिरियां करते हैं, और जो बाहर का पासपोर्ट रखा हुआ है उसके ऊपर वो अपना पैसा यहाँ पे लो रखा हुआ है, यहाँ जायदादें खरीदी हुई है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जिम्मे में नहीं आता। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटीज है, जिनके पास जो पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज करते हैं, मैं उनके खास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, जिनके पास एक ही पासपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल बाहर का पासपोर्ट है, वो हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो एक पासपोर्ट रह रहे हैं, तो उनको वीजा लेके पाकिस्तान जाना पड़ता है। लेकिन जो दो पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है जिन्होंने यहाँ पे कारोबार खोले हुए हैं और जो 4 बंगले खरीदे हुए हैं, तो जायदादें बनाई हुई हैं, बैंकों में नोट भरे हुए हैं और उसमें से 1% भी पाकिस्तान को नहीं देते हैं और यहाँ अयाशियां करते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिस यूज करते हैं सब पाकिस्तान जाने के लिए और ये चीजें जो करते हैं, हमारा गवर्नमेंट को ये कहना है कि जहां वो बोल सकती है वो गवर्नमेंट इसको सुने। ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी हैं और दूसरा पासपोर्ट भी है, उनके ऊपर उनका जो पैसा है जो बाहर के मुल्क में जायदादें बनाई है उन्होंने, जो पैसा उन्होंने बाहर के मुल्क में रखा हुआ है उसको टैक्स के जिम्मे में लेके आए, उसको टैक्स के सर्कल में लेके आए, उससे उनकी पूछ पकड़ करे। चाहे वो जायदादें यहाँ है मगर वो पासपोर्ट होल्डर हैं, इसलिए उनका कोई उज़र नहीं सुने और उनसे पूछा जाए कि आप ये उनसे जो टैक्स रिटर्न ली जाए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर और उन लोगों की जायदादें, उन्होंने जो कारोबार खोले हैं उनके और उनके जो उन्होंने बंगले बनाए हुए हैं और जो वोट उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बैंकों में जो पैसे भरे हुए हैं उसकी डिटेल ली जाए और उसके ऊपर उनको टैक्स के जिम्मे में लाया जाए। इसके लिए आसान तरीका गवर्नमेंट के लिए ये है कि पाकिस्तानी सफारतखानों में टास्क फोर्सें कायम करें, पाकिस्तानी एम्बेसीज में टास्क फोर्सें कायम करें और वो टास्क फोर्सें जो है सिर्फ उसके लिए हों कि वो लोग देखें कि कितने पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रहते हैं और उन लोगों की जायदादें, उन लोगों की चीजें कि कौन कौन सी हैं उन्होंने बनाई हुई है, पैसा उन्होंने जमा किया हुआ है। उसके लिए वो टास्क फोर्स यहाँ के बैंकों से ऑफिशियली रब्ता करके ऐसे लोगों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट से और यहाँ की जो इनके जो है फाइनेंस के मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रब्ते करके ऐसे लोगों की डिटेल हासिल करें और उन लोगों को जो है इस टैक्स के जिम्मे में उनको छोड़े नहीं। और अगर जो लोग यहाँ रहते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और फॉरेन पासपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान आते जाते हैं, अगर वो टैक्स नहीं देते हैं, अगर वो पैसा छुपाते हैं और जो यहाँ कारोबार करते हैं, याशियां करते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, तो उनके पासपोर्टों को मुअत्तल करें वक्त उनके खानदानों के बच्चों के जो है और उनके जो है उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो पहले तो मुअत्तल करें, उनको नोटिस दें कि वो लोग जो है इतना से में अपनी जो है वो वाज़ेह करें, लगा दें अपना पैसा वगैरह और उसके ऊपर टैक्स दें और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनके पासपोर्ट जो है वो जब्त किए जाए, उनको कैंसिल किया जाए, उन पर भारी जुर्माने ऐड किए जाए। उसके बाद जब वो ये सब चीजें दें तो फिर उनको पासपोर्ट रिलीज किए जाए ताकि उन लोगों का पाकिस्तान आना जाना जो है वो बंद हो इसकी सजा के तौर पे और इनकी अयाशियां जो है वो खत्म हो
اور جو ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے پاکستان کو بدنام کر کے اور ذلیل کر کے اور جس طرح سے بھی لوگوں نے پیسے بنائے ہیں اور جو انہوں نے خرابیاں کی ہیں، جس میں میں مثال دیتا ہوں کہ 90% پاکستانی جو ہے 95% پاکستان نے یہاں کے گوریوں سے شادیاں کی، ان کو ایکسپلائٹ کیا، ان سے پیپرز لیے، پیپر لینے کے بعد ان کے ساتھ بدماشی کی، ان کو دھوکے دیے، ان کو فریب دیے، ان کو ٹھڈا مارا، ان کو طلاقیں دی، ان کو چھوڑا اور جا کے چکوال سے پتوں ہیلو ہاں بولو، اب بولو. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. میں شاید خاقان عباسی کی ذات کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آدمی ہے، بہت معتبر آدمی ہے. یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے ایسے لوگ سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑے اور تھرڈ کلاس لوگ پسند آتے ہیں. جسے میں ذات جو اس شخص کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ مجھے، میں سمجھتا ہوں گڈ گائے، جو خاقان عباسی ہے سیریس گائے اور منفرد آدمی ہے. دوسری بات، ایک بات اور بتا دوں، ہمارے ملک کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں کے لاز کیا ہیں. باہر کے ملک میں یہ کوئی لاہور کا کوئی ریونیو آفس نہیں ہے، یا کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، یا کوئی یہاں وہاں کا کوئی لیگل ڈپارٹمنٹ نہیں جہاں رشوتیں چلتی ہیں، جہاں پہ طبقے چلتے ہیں، یا جہاں پہ کہہ دیا کہ جی لبر دے جان دے یا تعلقات چلتے ہوں. یہ ویسٹ ورلڈ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو، یہاں پہ کسی کی کوئی بچت نہیں ہے. یہ لوگ اپنے لوگوں کو بھی اسی دائرے میں لے کے آتے ہیں، قانون کے دائرے میں لے کے آتے ہیں. اور خاقان عباسی کے اوپر یہ بول رہے ہمیں بڑی بےزتی کرواتی ہے ہمارا، کیونکہ یہ بیوقوف ہے. یہ لوگ تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے ہوتے بات کرتے ہیں امریکہ کی سیکورٹی کی. کل اس نے خاقان عباسی نے وہی جواب دیا جو ہم پہلے دے چکے ہیں. بہت اچھا بچے نے پرائم منسٹر نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں، اور بڑا ویلڈ تھا، بہت ان ٹائم تھا. اس سے بات کو کلیئر کیا اس قوم کے لیے جو ایک جاہل قوم ہے، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں کیا ہوتا ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے، اور وہ اتنا اعتراضات کر رہے ہیں. پاکستان کی بےزتی کروا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، کیونکہ یہ ماورائے قانون زندگی گزارتے ہیں، ماورائے لا زندگی گزارتے ہیں. کوئی کسی کا قانون کو مانتے نہیں ہے. اپنے ملک میں میں بات کر رہا ہوں تو سمجھتے ہیں باہر کے ملک میں بھی ایسا چلتا ہے. تو جب خاقان عباسی باہر گیا تھا، وہ ہم نے کہہ دیا نجی طور پہ ہوگا، اور دوسرا اس کی چیکنگ کی ہے، اس سے بہت اچھا کیا، اس سے بہت اچھا جواب دیا کہ میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں کے قانون کی عزت کرنی ہوتی ہے، وہاں کے قانون کے لیے جو ہے جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا میں یہ ہوں میں وہ ٹھڈا مارتے ہیں گانڈ میں اور کہتے ہیں تو یہ ہے وہ دفاع ہو جا واپس. تو یہ ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اس قوم کو. یہ بات میں بار بار واشنگٹن سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یورپ یا ویسٹ ورلڈ کیا ہے، یہاں قانون کس طرح کا ہوتا ہے. اس سے کوئی ایگزامپل نہیں ہوتا. لوگ اس کے اندر آتے ہیں، اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا کوئی شخص اس سے بالا نہیں ہوتا. سو اس قوم کو چیز سمجھنا چاہیے، جاہلیت سے بھری ہوئی قوم ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیان دے رہا تھا، ہر چیز کو جوڑ رہے تھے، بہت ضروری ہے. سلمان خان کے اوپر بیان دے رہا تھا کہ جی یہ ہو گیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو مسلمان شروع ہو رہے ہیں کہ جی مسلمان کو پکڑ لیا تو یہ کر لیا تو وہ کر لیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات بہت ضروری ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہوتا، گڈ مسلم ہونا کافی ہوتا ہے. ان لوگوں کے پیٹوں میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ سلمان کو کر دیا، اس مسلمان کو یہ ہو گیا، اس مسلمان کو وہ ہو گیا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس سلمان خان نے سوائے اپنے روپیہ کمانے کے کیا کبھی جب برما میں مسلمان مر رہا تھا، دین مسلم اس کا ایک بیان بھی ریکارڈ پہ ہے؟ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، کیا اس کا ایک بھی بیان ریکارڈ پہ ہے؟ کہتے ہیں 32 لاکھ جو 3 ملین ٹویٹر پر جو فالوور ہیں وہاں پر ایک ٹویٹ وہ کرتا. اس کے لیے میں اپنا مسلمانوں کے یا بھی جو مسلمانوں کے لیے جس ان کے اوپر مصیبت آتی ہے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی وہ مسلمان ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہر چیز کو کلیشے بنا دیتے ہیں لوگ. یہ میرا پوائنٹ غلط ہے. اس کا ایک بیان آج تک کبھی کسی مسلمان ملک میں ہونے والے مسلمان کے لیے اس کا ایک لفظ کی مینشن کرتے ہیں. تو سلمان خان نے یا عامر خان نے آواز پائی
जोड़ देते हो, मुसलमानियत से जोड़ देते हो। तो मकसद जो मेरा कहने का है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, इस चीजों को समझना चाहिए इस कौम को। ये जो जज्बातीपन है, ये जो स्टुपिडिटी है, ये जो इस तरह की चीजें हैं, कहते हैं दूसरे के मामलों में नाक ठूसना, जो चीजें लोगों को बंद करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास बच्चे मारे गए हैं फलस्तीन में, जो शाम में ये जो है हमारी आवाम उठ के तो वहाँ बात शुरू कर देती है। ये एक बात का जवाब में कितने धमाके हुए, पाकिस्तान कितने मुश्किल दौर से गुजरा, पाकिस्तानी आवाम कितनी मरी है बेचारी, कितने लोग जो है मुतासिर हुए बम धमाकों दहशतगर्दी से। क्या शाम किस मुसलमान ने, किसी आदमी ने, किसी हुक्मरान ने एक लफ्ज पाकिस्तानी कौम के हमदर्दी में कभी बोला? क्या कभी शामी हुकूमत ने बोला? क्या फलस्तीन की हुकूमत ने या फलस्तीन के अवाम ने पाकिस्तान के तकलीफों दुखों में, बम धमाकों में, शहादतों में कभी कोई एक जुमला भी आया? क्या अफगानिस्तान से कभी आया? पाकिस्तान के हक में कोई बात हुई? क्या जो इंडियन फिल्म एक्टर्स हैं मुसलमान, क्या उनकी तरफ से कभी भी कितने मुसलमान एक्टर्स हैं, क्या पाकिस्तान के बम धमाकों, तकलीफों, दहशतगर्दियों के घोर अंधेरे के उनमें कभी कोई एक शख्स कभी उनके हक में बयान या दुख का या अफसोस का आया? ये पाकिस्तानी कौम जो है, क्या ये इससे ठेका लिया हुआ है कि हर एक के लिए बोलना शुरू कर देती है कि उसके लिए भी है, उसके हमदर्दी में तुम लोग का भी थोड़ी नहीं है, तुम लोगों को पूछता नहीं है, और तुम लोग उठ के शुरू हो जाते हैं कि वो मुसलमान तो ये मुसलमान तो वो मुसलमान। यहाँ पर तो ये अब हालात आ गए हैं कि वो सोल्जर जिसको सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता है, वहाँ जुए कैसे खुल गए, वहाँ कैसीनोस खुल गए, वहाँ पे बीचेस खुल गई है। ये जो हालत हो रही है, पहले अपने आप को तो संभालो। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये है कि ये चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी जो हमने बात करना चाहते थे। अब चीन के बारे में भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडरशिप, अगर कोई इंसाफ का बच्चा बैठा होगा, कोई हलाली बैठा होगा, हमें 15 साल से स्टडी करता होगा, हमें देखता होगा, तो कहता होगा हमारी 99.9% बातें जो है हम सुकरात बुकरात नहीं है मगर सही साबित होती हैं। जो कौमें शेख सदी रशीदों जैसे कट्टरों को बातियों को जिनकी बातें कभी सही होती नहीं है, उनको बिठा के चल बातें जा रहे हैं, उनकी बकवास या सुने जो कभी पूरी होती है, तो वो कौम जो है जो कि पिंडों को और गटरों में रीझने वाले कीड़ों को अपने हीरो बना लेती है और सुकरात बुकरात डालती है, उन कौमों के साथ ही होता है। ये कौम इस वक्त इनके साथ हो रहा है। तो चीन के हवाले से मैं देख रहा था काफी है जो चीन में अभी इनकी जो हुई है वो अपना आपस में चीनियों की पीस स्टडी फोर्सेस के साथ लड़ाई हुई है। तो अब लोग दिख रहे हैं, आंखें खोलो कि चीन भी कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए, यू नो। और हम जब से 2, 3, 4 साल से बोल रहे हैं, सी पैक के होने तक से बोल रहे हैं कि सी पैक तुम्हारे लिए नहीं है। बलूचिस्तान में जो जब ये अब चीनी उतरेंगे तो क्या करते हैं, और जो है ये अपना जो है चीनियों का जो होगा, चीनियों का जो ये होगा, इनका जो इनके इरादे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। मगर हमारे मुल्क के लीडरान मुशाहिद जैसे दूसरे टट्टू पट्टू जो टट्टू पंजू है, वहाँ पर बड़ी सीट पे बैठा हुआ कोई सेंटर है, कोई वजीर है, कोई अमीर है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई भी इन लोगों की अकलें काम नहीं करती। हम जो देखते हैं, हमने जो मिशन किया, आज वही बातें लोग करना शुरू हो गए हैं कि एक दिन ये चीनी जो है इनके इरादे गलत लगते हैं, ये हाकिमाना है, ये लोग जो है ये किसी चीज को समझते नहीं है, पाकिस्तानी कौम को कुत्ता समझते हैं। और जब ये सीट में कामयाब होता है, चीनी वहां पर आते हैं, जिस तादाद में आएंगे वो तो दुनिया देखेगी। जो चारा बनाई उन्होंने चीन से लेकर बलूचिस्तान तक, उसमें जब फौजें चीन की याजीज माजीज की तरह उतरेंगे, वो जब दाखिल होंगे तो ये बैठे हुए मुंह पे देख रहे होंगे। ये सारे प्लान है गर्म पानी तक पहुंचने का हमने पहले लेके कर दिया था कि 54 अरब डॉलर जो से खर्च किए हैं वो तुम्हारे लिए नहीं किए हैं। जो बंदा सीट है कि चीनियों के अपने लिए यहाँ पर चीनी आके बैठेंगे, पाकिस्तानी नहीं बैठेंगे। बहुत अरसे की जरूरत थी, रशिया की जरूरत थी, गर्म पानी में रशिया की जरूरत थी। वो जो अफगानिस्तान दाखिल हुआ था तो मुमकिन है उसकी नजर हो कि भाई वो वहां से गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था। तो चीन के पास जो है वो नहीं है, ये गर्म पानी का समंदर नहीं है, इधर की राहदारी नहीं है, तो इसलिए उनके वो बहुत लंबा चक्कर कर उनको काट के आना पड़ता है। अगर इससे आना हो, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब अरब ममालिक तक पहुंचना हो एक शिपों को, तो बहुत लंबा चक्कर काट के उनको आना पड़ता है। तो
ये उन्होंने आसान तरीका देखा था, बहुत अरसे से जरूरत थी, और इस सारा मंसूबा बनाया गया था। और ना हंजार और ना अंतरिक्ष जो हमारे हुक्मरान हैं क्योंकि बेकारी थे, उन्होंने अगर चीन को जरूरत थी तो बाकायदा मायने होते कि सी पैक जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी के अंडर रहेगा, चीन सिर्फ इमदाद देगा, और जो है बाकी जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए सी पैक, चीनियों का इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। मगर इन लोगों ने ये नहीं किया, चीनियों की बातें मानी, उनको पैसा वापस करना है इन्होंने, जो चौवन अरब लग रहा है सूद समेत, और ऊपर से चीनियों का कंट्रोल होगा, सब कुछ माना, तो पाकिस्तान का हिस्सा कहाँ रह गया? तो वापस ये रियलिटी है। जो बैठे हुए वहां पर सीटों पे जो हराम तोड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, जो अपने को बड़ा चुहादी समझते हैं, उन्होंने जनाजा निकाल के रख दिया। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को उस कदर पामाल किया है, खतरे में डाला है कि इन लोगों की अकलें काम नहीं करती है। ये 1.5 फुट से आगे सोच नहीं सकते हैं ये लोग। पाकिस्तान के जो करता धरता लोग हैं, इन्होंने जो सी पैक के जरिए जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक आज तक तो हमारी पिछले 3-4 साल की बातें बिल्कुल साबित हो गई है चीन के हवाले से, सी पैक के हवाले से, कि अब लोग वो बातें करने लग पड़े हैं। ये ऐसा ना हो वैसा ना हो तो चीन के रास्ते खाल सकते हैं, चीन हो जाए। मकसद हमारा कहने का दिस इज द लीडर्स रीजन, जिनको तुम लोग मानना नहीं चाहते, जिसको पाकिस्तानी कौम मानना नहीं चाहती, जो जाहिलों की अजड़ के अजड़ जो है, ये कौम नहीं हजूम जो है, ये हजूम जो है, ये इन चीजों में पड़ी हुई है कि उसको तुम मार दियो, वहां मुसलमान मर गए, बच्चे मर गए, तो ये वही तुम अपनी नहीं बोलो। ये अफगानिस्तान एक खतरनाक मुल्क है, तुम लोगों को खा जाएगा, वो आके तुम्हारे बच्चे मारेगा। जब वो बमबारी करेगा, हमले करेगा पाकिस्तान पे, तो फिर तुम्हारे भी बच्चे मारेगा वो। तुम उनके बच्चों को रो रहे हो, जो कल के टेररिस्ट है, जो कल के पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं। तुम तो तुम्हारा हक ही नहीं मदद तुम उन लोगों को रोक, सिर्फ मुसलमान है। ये चाहिए कि उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, इनको समझ नहीं आती है। हाँ, मैंने कहा है इट्स नॉट मैटर कि यू आर मुस्लिम, इफ यू आर गुड मुस्लिम तो बात है, वो गुड मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है। वक्त आने के ऊपर वो रोटी खाने वाले, हाथ को चक मारने वाले कौम है। तुम रोते हो फलस्तीनियों के लिए, तुम रोते हो शामियों के लिए, तुम रोते हो। कोई आज तक पाकिस्तान की कौम के लिए हमदर्द बन के नहीं आया, ना तुम्हारी कभी किसी वर्ल्ड फोरम में आवाज उठाई है। ये जाहिलों को इनको समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा नहीं, ये तो उनको पता है ना, क्या कहते हैं वो मीडिया के जरिए जो आपको फीड कर देते हैं, उसी को गुट्टे दिए, गुट्टे नारे मारते, 40 साल पुराना मरने वाले, उसको पता ही नहीं है गुट्टे क्या चीज था। जिनको जो फीड कर दो, इनके दिमाग में चीज गुजरती, क्योंकि दे आर इलिटरेट, जाहिल है, अनपढ़ है। अनपढ़ वो क्या उसका जिनको पता है कि उनके कौमी त्यौहार क्या है, उनके कौमी हीरोज क्या है। जब कोई यही को पता नहीं है तो वो यही करेंगे ना, उधर मुसलमान इसी में फंसा दिया इनको, उधर मुसलमान मर गया। ये सोचते हमारे ऊपर जब उस्ताद पड़ी थी तो कौन सा मुल्क ने हमारे लिए आवाज उठाई थी? पाकिस्तान की आवाज उठाई थी, हमें से भी जवाब चाहिए, कोई किसी ने आवाज उनकी उठाई थी। तो मेरा मतलब जो कहने का है वो सिर्फ ये है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तानी कौम को जिस तरह से बर्बाद किया है सियासतदानों ने, जिस तरह से इन लोगों ने इनको तबाह किया है, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को जो है इन लोगों को समझना चाहिए। उसके अलावा बात कर रहा था ये आज जो बिलावल है वो बात कर रहा था, मैं कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, बेगैरत बिलावल, इसका नाम बेगैरत बिलावल है, लौंडा है, इसको पता ही नहीं है दूध होने का। ये जाके खड़ा हो गया, सियासतदान बन जाते हैं भोसड़ी के। आज फिर वो जो है क्या नाम है उसका, वो चीफ मिनिस्टर जो वहाँ का है, वो शाख पीछे रहा हुआ था, ठीक है, ये बिलावल की। अब पूरी सिक्योरिटी सिंध की जो है चीफ मिनिस्टर की, वो उनके साथ है। ये कोई तरीका है? तुम चीफ मिनिस्टर हो, जाकर पर काम करो, अपने दफ्तर में हजारों लोगों के मसाइल है, मुल्क के मसाइल है, मुल्कों पर काम। तुम बिलावल के पीछे खड़ा हुआ उसके नौकर, बाप के नौकर की तरह, और तुम्हारी वजह से पूरी सिक्योरिटी जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो उसको फ्री में मिल रही है। तो तुम लोग कहते हो तुम लोग गरीबों के लिए हो, फिर बातें करता है कि हम गरीबों के लिए हैं, हमने गरीबों के लिए मुद्दे जो है वो गरीबों के लिए काम करता था। आज मैं देख रहा था एक जगह है, इंसान का ज़हन काम नहीं करता कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। कौंसल क्या नाम है, यूनियन कौंसिल को वली मोहम्मद है, वहां पे पानी नहीं है, नापैद है। बच्चियां सिर्फ इस लालच में स्कूल जाती हैं क्योंकि उनको वहां पे 2 गिलास पानी पीने को मिलता है। ओह माय गॉड, ओह गॉड,
वो एक पानी मिलता है उनको जब वो पहुंचती है और एक पानी इनको रिसर्च में मिलता है, उसके बाद उनको पानी नहीं मिलता। वो इस लालच में सिर्फ स्कूल जाती है कि उनको पानी मिलता है क्योंकि उस इलाके में पानी नहीं है। तो ये कहते हैं ये गरीबों के लिए उन्होंने ये लोग 3-3 दफा हुकूमत करते हैं। ये कहते हैं हम गरीबों की सियासत करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, खुदा की कसम मैं कहता हूँ वाकई मुझे यकीन हो गया कि कुदरत हमारे हाथ मजबूत करी। जिस तरह लोग हमें बलोचिस्तान में सुनते हैं, जिस तरह बलोचिस्तान से अब कॉलें आती हैं, जिस तरह हमें दीगर ममालिक से कॉलें आती है, दीगर सूबों से आती है, हमें पंजाब से भी आ रहे हैं लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, केपी के भी करते हैं। खुदा जानता है हम झूठ नहीं रहते, झूठ नहीं बोलते। लोग हमें प्रेस कर रहे हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, हमें यकीन होता जा रहा है कि हमारे मैंने उस दिन भी कहा था हमारी जो रूट्स है वो पाकिस्तान में जो अंदर जा रही है। और ये हमारे लफ्ज याद है, हमने पहले भी जो कहा हमेशा पूरा हुआ आज भी कि बहुत तेज जा रही है। बहुत बेवतन लोग, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग और पाकिस्तान में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है या जो लोग जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो अपने मसाइल के हल के लिए, जायज हल के लिए और जिसे कहते हैं ऑनेस्ट हल के लिए वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में कायम की हुकूमत कायम हो ताकि उनके मसाइल को सुने और उन लोगों को इन हालात से निकाले ताकि वो भी सेपरेट मतलब क्या कहते हैं सेपरेटिस्ट होने या वो कहते हैं ना अलग होने की जो नारे मारते हैं उससे निकले, क्योंकि वो भी आराम से रहना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उसी मुल्क में रहे मगर उनको उनके हकूक दिए जाए जो नहीं दिए जा रहे। जो ब्लडी ब्यूरोक्रेसी, ब्लडी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो नाकारा और सलील और हरामियान ब्यूरोक्रेसी और वो है जिससे तबाही बचाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होने दी, जिन्होंने बलोचिस्तान में बलोचियों को महरूम रखा और जिस वजह से बलूचिस्तान में जो है वहां पर उनके अंदर एक एहसास महरूमी जागा और उनको बगावत की तरफ राग़िब किया गया। इसके जिम्मेदार मिलिट्री से पहले, मिलिट्री तो एक एक्शन करती है ना किसी को दबाने के लिए या किसी को बगावत दबाने के लिए या मुल्क के खिलाफ होकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनको उकसाते हैं, जो उनको मजबूर करते हैं, जो उनके हकूक मार के उनको बर्बाद करते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। ये बार बार हम कहते हैं कि इमरान खान कोई तब्दीली ला सकता इन लोंडों, लपाड़ों, लफंटों, बदमाशों, हरामियाने, पीटीआई में जितने भी हैं इनके साथ मिलके जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, जो उसके जो तब बरास है वो सब की सब बदकार करप्ट है, उनके साथ तब्दीली नहीं ला सकता। वो क्यों लोगों को लू का पट्टा बनाई जा रहा है कि वो तब्दीली ला सकता है? जब तक वो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाएगा, वो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली जमहूरी हुकूमत नहीं ला सकती। जमहूरी हुकूमत किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं हटा सकती, किसी सेक्रेटरी को मुअत्तल नहीं कर सकती, किसी सेक्रेटरी को जॉब से नहीं निकाल सकती। वो उनको सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है, इधर से उधर कर सकती है, रीशफल कर सकती है, लेकिन उसके पास निकालने के इख्तियारात नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी या किसी भी इदारे को दुरुस्त करने के लिए इनकलाब की जरूरत होती है। एकदम उड़ा दो, उठा दो, भटका दो, ये इनकलाब में होता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इनकलाब होता है और उसी से मुल्क में तकदीरें बदलती हैं। अवाम समझे, इनकलाब 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 तुम्हारा नसीब है, तुम्हें अगर तब्दीली लानी है वो इनकलाब लाओ जिसमें ये लोग जो तब्दील ना हो, इधर से उधर सफल ना हो, बल्कि लटके मरे। ये चीज ये जो है ये चौकों में लटके इनका खून बहे, तुम्हारी इनसे जान छूटे, तब जाकर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। वरना वही जो खरब रुपए का पैसा खर्च करके जो ये क्या कहते हैं इसको असेंबलियां हैं, असेंबलियों पे, सेनेट पे और ये इलेक्टोरल सिस्टम पे खरब रुपया खर्च होता है, खरब रुपया जो लगता है और एक सेंटर के ऊपर इस तरह से। तो ये सब का सब पैसा बचेगा, ये पैसा अवाम पे लगेगा, ये पैसा टाइम इनकलाब में असेंबलियां नहीं होंगी, ये असेंबली पे डिपोजिट नहीं होंगे, इनकलाब में ये चीजें नहीं होती, ये इलेक्टोरल सिस्टम को लपेट दिया जाएगा और वो पैसा जो है अवाम को स्कूल, कॉलेज, पानी, सबसे पहले पानी और मेडिकल जो है वो उनको मुहैया की जाएगी। और ये इतना पैसा है, अगर ये असेंबलियां की चीजें बंद कर दी जाए, इतना पैसा है कि आपको ये अवाम को कई साल तक आप फ्री मेडिकल और फ्री पानी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और फ्री कुएं खोद सकते हैं, शहरों में कुएं खोद सकते हैं और कहाँ लोगों को पानी की पाइपें बिछा सकते हैं, आप गैस दे सकते हैं। इतना पैसा है, इतना पैसा है। तो हम जो है जब लोगों को कहते हैं इनकलाब इसका हल है, इनकलाब ही इसका हल है, ये हरामिया ने पाकिस्तान को हटा दो, इनको मिटा दो,
और ये जो इलेक्टोरल जमहूरी फ्रॉड है, जिससे बेनजीर जो गरीबों की सियासत करने वाली सरे महल बनाती है, गरीबों की सियासत करने वाले बनी गला के महलों में रहते हैं, गरीबों की सियासत करने वाले जाति उमर के महलों में रहते हैं, गरीबों की सियासत करने वाले बिलावल हाउस में रहते हैं, लाहौर के बिलावल हाउस देखो इधर, ये गरीबों की सियासत करने वाले 15-15, 18-18 गाड़ियों की हुकूमत में ना होते हुए भी आंतराज और मोटर केटों में दौड़ते हैं, और गरीबों की शासन करने वाले एक जलसा अपने सीएम के बिना नहीं करते, क्योंकि उनको सिक्योरिटी जो है वो भी फ्री में चाहिए होती है, उनकी सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसलिए सीएम साथ होगा तो सारा जो सिक्योरिटी है सिंध की जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो सिक्योरिटी है वो सारी के साथ दौड़ रही होगी, तो ये जो है उस चीज से निकलते नहीं है, स्टेटस को से निकलते नहीं है, फिर कहते हैं हम गरीबों की शासन करते हैं, इनको कोई जूते भी नहीं मारता, इनको जूतों की जरूरत नहीं है, अब इनको डंडों की जरूरत है कि पायम इंकलाब इनको मारेगा, लोग देखेंगे, लोग ये देखेंगे कि पायम इंकलाब में ये सब कुछ होगा, ये सारी चीजें होंगी, मीडिया से ये सारे चेहरे मिट जाएंगे जिन लोगों ने उधर मचाया है, ये टके टके का लौंडा, ढाई क्या कहते हैं जहाँ के पास लौंडा, जिनको कुछ बोलना नहीं आता, जिनको आज से 5 या 10 साल पहले तक का इन लोगों के पास इल्म नहीं है, इन लोगों के पास पाकिस्तान बदलने के बाद का इल्म नहीं है, इनसे पूछो कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन था, पाकिस्तान कौन था, पाकिस्तान ये जो हर दौर में इनको कोई इल्म नहीं है, ये सब ये दौड़ता नहीं, इमरान खान, ये नवाज, ये बेनजीर, ये बिलावल इसके अंदर दौड़ के इसी दौर में जिंदा है, और फिर जाके एंकर बनते हैं और ये बकवासियात करते हैं, और जो है वो अपना ये लोग ये सब के सब मिट जाएंगे, नई बोर्ड आएगी, पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट हमारी पायम इंकलाब, हमारा वादा है, जितने लोग सुन रहे हैं जहां जहां सुन रहे हैं आपकी तैयारी रखो, पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट तुम लोगों को हम खुशामदीद बोलेंगे, तुम लोगों को जगह मिलेगी, यहाँ पे किसी करप्ट को जगह नहीं मिलेगी, कोई आजमाया वकाटू से होगा, ये सब यूथ नए लोगों को, नए लोग पूरा सिनेरियो तुम लोगों से भरेंगे हम, आने वाला वक्त पायम हुकूमत में तुम लोग नजर आओगे जो कभी कहीं नजर नहीं आते, वो लोग नजर नहीं आएंगे जो पीटीए ने जमा किए, वही पुराने दल्ले बकवासी किस्म के लोग, फ्रॉड है, चीट है, वो ये हमारा पैगाम है, बार बार सुनो, इसको समझो कि भारत की हुकूमत तुम लोगों को मौका देगी, जिनको कभी मौका नहीं मिला, हर एक की बात को सुनेगी, हम बलोचिस्तान के लड़की पसंदों की बात भी सुनेंगे, हम उनके लिए भी लेकर आएंगे, रेमेडी लाएंगे, हम उनके मसाइल को सुनेंगे, अगर वो सच्चे हुए, अगर वो अपने मसाइल को हल कराने में सच्चे हुए तो पायम इंकलाब की हुकूमत इनको देगी, उनको मौका देगी, उनको ये मौका देगी कि वो उनके मसाइल दूर हो और वो खुश खुरम जिंदगी गुजारे और हथियार फेंके और पाकिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में काम करें और किसी का ना बने, मगर जब आप उनको कुछ देंगे नहीं, आप उनको देंगे भी नहीं, उनको बम मारेंगे तो वो तो देंगे अपना रिएक्शन, हम नहीं कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, हाँ हरामी जो होगा, चाहे सिंध का हो, चाहे केपीके का हो, चाहे पंजाब का हो, जब उनको दे दिए जाएंगे बेनिफिट्स, उनकी बात सुनी जाएगी, उसके बावजूद बनाने बंद करेंगे तो गोली मार दी जाएगी, उनको तोप बना दिया जाएगा, ये पायम इंकलाब होगा, ये इंकलाब लाओ, अगर पाकिस्तान को चेंज करनी है तो इस इंकलाब में पाकिस्तानी अवाम साथ दो, निकालने बुझाने का ये दौर गुजर गया है, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात में है, पाकिस्तान इंतहाई डेंजरस हाथों में है, पाकिस्तान इंतहाई गलत हाथों में है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना पड़ेगा, ऊपर लोगों को लाना पड़ेगा, क्लियर गाँव में भी इतने लेवल के ऊपर कितने लोगों को खत्म करके ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर लोगों को लाना पड़ेगा, पाकिस्तान की वकालतों पे नए लोग बैठेंगे जिनको कभी किसी ने देखा नहीं होगा, पाकिस्तान के अदारों में वो लोग बैठेंगे जिनको कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ना कभी करप्शन की होगी, ना उन्होंने कोई खराबी की होगी, पायम इंकलाब को जगह देगा, ये हमारी बात याद रखना। मैं यहाँ से एक बात और करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो बन गया है, तो उससे कल या परसों जो है वो शुरू हो रही है, अपना फ्लाइट शुरू हो रही है। मैं ये बात और जमाल साहब एक बात वाश का अल्फाज में कहते हैं, हम दोबारा ये तब्दील करते हैं, वार्निंग देते हैं पाकिस्तान के कंजरों को, हरामियों ने पाकिस्तान जो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, कि उस एयरपोर्ट का नाम अगर तुम लोगों ने किसी सियासतदान के नाम पे रखा तो जिससे हमने वादा किया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो पुराना एयरपोर्ट है उसका बेनजीर नाम रखने वाले को और उसका नाम प्रपोज करने वाले को और उसके नाम को प्रूव करने वाले को उस इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास की लाशें लटकाएंगे पायम इंकलाब में। इसी तरह अगर किसी ने गलती की एयरपोर्ट का नाम
कसम वो हमारी हिट लिस्ट में होगा। इसलिए बात लेना कि नया इस्लाम आबाद बन रहा है, एयरपोर्ट जो बन रहा है, अगर को किसी सियासतदान के नाम पे रखा तो मत समझना कि ये धमकी है, मत समझना शायरान की तरह, जिन लोगों की तरह ये धमकी है। और फिर बाद में जब गर्दने कटील को हम तो कहते हो ये वक्त तो कभी नहीं आएगा, वक्त आ गया। खुदा की कसम बहुत वक्त बदल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, वो हमारे साथ दे रहे हैं और हमसे राब्ते कर रहे हैं, और हमें यकीन होता जा रहा है कि जो किस तरह से लोग जो है वो हमारे साथ मिलते जा रहे हैं। मैं बस यहाँ एक बात कह रहा हूँ, बड़ी हैरानी होती है मुझे, खैर चलो बात करने की होती है। तो एनीवे तो ये बात हम मैंने जमाल साहब ने करनी थी, और पार्टी के लिए भी काम करने के बाद हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं हम गरीबों की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं, चाहे वो बेनजीर के लोग हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ये बात जरूर गौर से सुने। दरियाए नीलम पे ये लोग जो है डैम बना रहे हैं, गंगा पता नहीं क्या नाम है, गंगा टम्बक वो डैम बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया डैम बना रहे हैं जिससे दरियाए नीलम जो है जनाजा निकलने वाला है। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी आदत है, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान उनकी आदत भिखारी है, साले बेकमंगे, चाहे कोई भी हो, एस्टैब्लिशमेंट में खास बात करता हूँ, सीधा वर्ल्ड बैंक पहुंच गए, वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जी वो इंडिया से बात करें इस बात के ऊपर कि डैम ना बनाए या जो भी करे, इस की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुजरमाने पीपल्स पार्टी, मुजरमाने मुजरमाने PTI हुकूमतें हैं जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किया, एक भी डैम नहीं बनाया। ये वादे किए थे खट्टक ने, जिसने कि हम डैम बनाएंगे, इसने बनाए, इसे इमरान खान ने, कौन सा डैम बना है KPK में? और ये बताया नवाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत और अपना जो ये जरदारी की गिलानी 25 डैमों की बात करके गया था, एक डैम नहीं बना। इसका मुजरमान कौन है, इसके जिम्मेदारान कौन है? हम इनको सजाएं देंगे। इंडिया डैम पर डैम बना रहा है, पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इन लोगों ने डैम नहीं बनाए, इन्होंने पानी के जखायर नहीं बनाए। और आज जब नाक से ऊपर चला गया पानी तो बिलावल बोलता है कि जी ये हम पानी के जखायर बनाएंगे। माय फकिंग फट, तुम लोग पानी के जखायर बना लो। पहले 5 साल में पहले 5 साल की कारकर्दगी पर ही तुम लोग खड़े नहीं हो सकते। पहले 5 साल में तुम लोगों ने रांडों को, रंडियों को छुआए, जो तुम्हारी रेडियो में चलने वाली, जो तुम्हारे विसर्जन करने वाली रांडों को तुम लोगों ने जो है क्या कहते हैं वो मोटर कहते दी, और उनको तुम्हें पब्लिक क्या कहते हैं वो पुलिस सिक्योरिटी दी, पुलिस गार्ड दिए। जो रांडे थी, जो रंडियां थी, तुम लोगों ने उन लोगों को मुशारते दी, उनको वजारते दी, रंडियों को। तो फिर तुम्हारा इसके अलावा शराबें पी के लुढ़कना और बदमाशियां करना, बिस्तर गर्म करना, हराम कार्य करने और मुजरे करने के अलावा कुछ किया नहीं है। 5 साल में कोई अपनी कारकर्दगी तुम लोग बताओ कि पीपल्स पार्टी ने तुमने कौन सा काम किया है जिससे अवाम को बेनिफिट पहुंचा है? सो दिस इज नल एंड वॉइड। पीपल्स पार्टी इज डेड, it's dead, it's already dead in other provinces and it will be dead in Sindh soon। ये जिसका बहुत बुरा हाल होगा। और ये बाकी इनका सिस्टम होना चाहिए हो। ये 35 साल वाशी में गुजारे हैं, इसके चूटों पर छुट्टे पड़ने वाले हैं, इसकी छिपासी के पड़ने, इसको सीधा करेंगे। वक्त आने पर लोगों ने कोई काम नहीं किया, बकवास करते हैं। उल्टा चीनियों के हाथ में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को फंसा दिया। इनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के जो शिकें हैं वो इतनी कमजोर है जिसपे चीनी कभी भी आकर उस सी पैक पर बैठ सकते हैं और इनका जो है होल नहीं होगा पाकिस्तान का। तो कहते हैं सी पैक हमारा है। इस तरह के बीच में 5 साल पूरे किए। ये 5 साल इनके लिए इनके जनाजे बनेंगे, क्योंकि इस 5 साल के जब हिसाब देने पाएंगे उनको बस बताने को कुछ नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया है। पानी इनकलाब मुताबिक रिकॉर्ड इसे हिसाब लेगा। इस तरह सफारत खानों में पिछले 20 से 30 साल के लोगों के हिसाब लिए जाएंगे। उससे जो उन्होंने डॉलरों में पैसे कमाए हैं उनसे वो पैसे वापस खजाने में दाखिल करवाए जाएंगे। और जिनके पास नहीं होंगे उनकी जायदादें बेच के या जिससे भी है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इन लोगों सफारतकारों से वो सारा अमाउंट पाकिस्तान वापस लिया जाएगा। जिन लोगों की कारकर्दगी सिफर है वो रिकॉर्ड के मुताबिक हम ये भी करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें हैं जो पाए में इनकलाब करेगा। और उसके बाद अब जो बाकी बातें के लिए इंग्रेजी में जाता हूँ, ये बात तो हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये पाकिस्तानी कौम के वाले से हाँ एक बात और मैं कह जाता हूँ, मैं रोज देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि ना अजीब तरह से कि आज मैं तो एक प्रोग्राम देख रहा था, जी उस बच्ची को उसके
बंदे ने मार दिया तो छुरी से गले में फंसी हुई थी, खोपड़ी में फंसी हुई थी लग गया। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये लोग जो है जाहिल जानवर बन चुके हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे दौर में पायम इनकलाब के बीच में हम लोग जो एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दे, बिल्कुल वाज़ेह पाकिस्तानी अवाम को कर दे, ये जो आइन है जिसकी टकोसले ये नाच नंगे नाच नाचते, इस आइन में कुछ नहीं है। ये आइन कुछ नहीं है। इस आइन में गरीबों के लिए कुछ नहीं है सिवाय ताकत और पावर की कशमकश और खींचातानी के। शिकों के कुछ नहीं है अवाम के लिए। पायम इनकलाब में नया आइन ड्राफ्ट किया जाएगा। पायम इनकलाब में नया आइन बनाया जाएगा जो पाकिस्तान की कौम के जरूरियात के ऐन मुताबिक होगा। उसमें बहुत सारी शिकें हैं, मैं जमाल डाकू साहब किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक बात बता देता हूँ कि उसमें ये होगा कि जो जिसको जिस तरह मारेगा, जो जिसको जिसका कत्ल करेगा, उसकी सजा उसी तरह होगी, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने किसी के गले में छुरा घोंप के उसको मारा है तो जब अदालत को सजा देगी तो उसकी सरेआम सजा उसी तरह दी जाएगी जिस तरह उसने किसी को कत्ल किया होगा। किसी को गोली मारी होगी तो गोली मारी जाएगी, कि किसी ने छुरी मारी होगी छुरी मारी जाएगी, किसी ने उसको और लटकाया होगा लटका के मारा जाएगा, उसको बायानी वो सजा दी जाएगी। हमारे कानून में ये होगा, इनकलाबी कानून में ये होगा। पाकिस्तान की अदालतों की कवानीन की किताबों में रद्द बदल किया जाएगा। जो ये 1857 के जो कानून चल रहे हैं, जो इनकी किताबों में लिखे गए हैं, जो आज के दौर से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इंसाफ में डिले होता है, ये सब चीजें जो है ये तब्दील कर दी जाएंगी। उसके अलावा हमने पहले भी कहा था पाकिस्तान अवामी का मूवमेंट ने कि हम पाकिस्तान की अवाम को उसकी दहलीज पर देंगे उसका इंसाफ। हर जज, हर मोबाइल अदालत जहां जुल्म होगा वहां पहुंचेगी और मौके के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर ट्रायल करके वहीं सजाएं मुकर्रर होंगी और वहीं सजाएं पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारी इस बात को जो हमने 14 साल पहले की थी, अपने मंशूर में ये के चोरी करके इसके ऊपर अमल करने की कोशिश की, शुरू शुरू में की टालेटों में पड़ी होंगी मेरा ख्याल है, वो टालेटों में कभी जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि वो करप्ट लोग वो चीजें नहीं बना सकते जो इनकलाबी बनाते हैं। और हम इन लोगों को सस्ता और सही इंसाफ उनकी जगह पर देंगे। इतनी अदालतें बनाएंगे मोबाइल के हर सिटी में होगी, जहां वाकया होगा वो जज पहुंचेगा और वो अदालत और पुलिस पहुंचेगी मौके पे, और विद इन 2 to 7 डेज के अंदर वहां पर मौके के ऊपर सब तक और उसके बाद जो है इंसाफ होगा और लोगों का मतावा होगा। बहुत सारे हैं हमारे प्लान जो हम करेंगे। हमारा सिर्फ कहना यह है, आंखें खोलो, आप भी आंखें खोलो, आप भी पाकिस्तान की आवाम आंखें खोले। अगर उसको वाकई कुछ चाहिए, अगर उसको वाकई पाकिस्तान का सिनेरियो टोटल चेंज चाहिए, बिल्कुल चेंज, तो फिर वो पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद मूवमेंट उसको देगी, जमाल टाको और हम आसन देंगे। बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी अगर आपको कुछ कहना तो ठीक है, अदरवाइज टॉक। हमारी अभी गुफ्तगू है, हमें इसलिए मुतवातर कर रहे हैं, लोगों को बता दी जाए, क्योंकि अभी वक्त है कि हमारी जितनी बातें हैं ज्यादा से ज्यादा तेज तर अंदाज में लोगों तक पहुंचे रहे। ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड होती जाएंगी, वो अपने उसके ऊपर पड़ी रहेंगी, जिसको जब जो सुनना होगा वो देखता रहेगा। मगर हमारी तरफ से हर बात जो है वो आवाम तक जितनी जल्द हो सके पहुंच जाए और वीडियो की सूरत में, और लोग उसको जब चाहे को सुन सके। इसलिए हम लोग आजकल बहुत तेजी से हर मौजूद के ऊपर अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिटेल के साथ जो है लोगों ने सुन लिया आपकी बात को। मुझे उस पर अब कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो बात हो चुकी है लोग उसी को सुने। हमारा मंशूर जो है वो हमारी जो है तकरीर हैं और हमारी स्टूडियोज़ हैं, वही हमारा मंशूर है। किसी को हमारा मंशूर चाहिए, उसी मंशूर उसमें वीडियोस को देखो, उसमें हर सेंटेंस मंशूर का है। अल्लाह तो खैर सल्लाह, ठीक है ना। तो मैं अब चलूँ, अभी जुमे का टाइम हो रहा है, मैंने जुमा ही पढ़ना है, फिर मिलते हैं। ओके, कोई और पाकिस्तान अवामी इस्लाम मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूं मैं, आवासन सैयद फ्रॉम जर्मनी एंड जमाल टाको पाकिस्तान अवामी इस्लाम पायम फ्रांस से। और पायम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, हमेशा इंशाल्लाह जो है करप्ट और क्रिमिनल के सामने खड़ी रहेगी ये पहाड़ की तरह। पाकिस्तानी काम हम आएंगे और इनकलाब लाएंगे, तुम्हारे दुखों का दावा करेंगे। हर मुस्लिम इंतजार करे
انشاءاللہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. اور تمام پاکستانی اپنا ذہن بدل کے اور اپنا ذہن ٹھیک کر کے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کے رول ریگولیشنز کے اوپر چلے اور اس کے اوپر چلے. دیٹس اٹ. اوکے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم زندہ باد، پائندہ باد. اوکے حسن. اوکے آل دا بیسٹ. اوکے جی، دی اینڈ. اوکے، ملتے ہیں پھر اگلی